Dear UPSC Civil Services aspirants, welcome to the series that is Jump Start series for public administration. As we have discussed in the previous sessions that we will be going through all the topics of the UPSC public administration optional. That is paper 1 and paper 2. In total they are going to be 26 topics, and we are going to discuss the questions also. 2 questions we will be discussing in the session, and rest of them you will get as a PDF, so that you can practice at your own level also, and that will be available in our Telegram channel. The link are given in the description below. Okay, so now today's topic which we are going to pick up, we have already covered the first topic of paper 2, that is Indian administration. हमने बात कर ली है फर्स्ट टॉपिक पर, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे. नाउ आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज फिलॉसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, इस पे हम बात करेंगे. नाउ फर्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है दैट इज द ओवरलैपिंग पार्ट. नाउ पेपर 2 में अगर हम इसको जीएस पेपर 2 से कंपेयर करें अपने इस टॉपिक को, दैट इज ऑप्शनल पेपर सेकंड के सेकेंड टॉपिक को अगर हम कंपेयर करें विद द जनरल स्टडीज पेपर, सो इंटरेस्टिंगली एंड फैसिनेटिंगली टू यू विल फाइंड दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ ओवरलैप, और आई विल से एवरीथिंग विच यू विल बी कवरिंग इन दिस पेपर, जीएस पेपर 2 and plus the optional paper, they are all similar, or you will find that kind of a similarity. So यहाँ पे हमारे पास टॉपिक में स्पेसिफिकली अगर इसको थोड़ा इलेबोरेटली देखें तो वी हैव साइलेंट फीचर्स एंड द वैल्यू प्रोमाइसेस, दैट इज मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स हैं और उसको किन वैल्यूज पे वो काम करता है, दैट इज द टॉपिक. देन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल कल्चर मतलब फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया में कैसे काम करती है, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, देन पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी है, हाउ दे फंक्शन एंड ऑल. So that is all there. Then bureaucracy and democracy की bureaucracy और democracy एक दूसरे को कैसे strengthen करते हैं वो टॉपिक है इसमें. And then democracy and bureaucracy and development. So it talks about that what is the role of bureaucracy in the developmental process of the country, कि एक bureaucratic setup civil services जिसके लिए हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे हेल्प करता है to strengthen the development in the country or the economic development or overall development in the country. Now अब interestingly you will find कि सारे टॉपिक आपके as it is paper 2 के पार्ट भी है, whether in the polity topic or the governance topic, historical background that is कि Indian constitution का जो evolution रहा है वो कैसे रहा है, what is the contribution from 1919 Act of Government of India 1919 and then the Government of India 1995, ऐसे बाकी जो भी developments रहे in the pre-independence era with respect to the constitutional provisions. And then you have parliament, union executive and various other topics. Civil services in India, civil services in India directly यहाँ पे link हो जाएगा आपका bureaucracy से and the its role in the democracy and the development process. ठीक है, so that means this is the benefit part, or this is kind of an advantage you have, that if you have a public administration optional, so you will not be only able to cover this all topic, but आपका एक वे से या एक ही चीज को कवर अप करने से दोनों जगह आपको बेनिफिट हो जाएगा, ऑप्शनल और जीएस दोनों में. ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस की जो आज हम प्रैक्टिस के लिए पिक करने वाले हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्वेश्चन एंड देन द पॉलिटिकल कल्चर. ये 2 क्वेश्चन आज हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. इन टॉपिक्स के 2 प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उस पे चलेंगे. सो फॉर दैट वी नीड टू गो ऑन आवर आंसर राइटिंग बोर्ड या फिर राइटिंग बोर्ड, उस पे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन ब्रीफ. Now, so the questions which we are going to cover here are first question is from 2021. It talks about the constitutionalism. ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है. नाउ माइंड यू जो अभी इस सेशन को देख रहे हैं, वी आर नॉट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द answer writing या answer of the public administration, but actually we are also trying to know how to write the answer with all the requirements. ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, if you have seen the earlier session you may be aware, but otherwise let's go through the process again. Now first of all क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. सो क्वेश्चन here is asking that constitutionalism के जो ideals हैं, that is specifically the government by लिमिटेड पावर्स, क्या इंडिया में ये फंक्शनल रियलिटी है? डू वी सी दैट इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू द कंट्री, और डू वी सी दैट इट हैज बीन स्ट्रेंथन्ड इन द कंट्री? और हमको बोला क्या गया है एग्जामिन करने के लिए. तो हमने पहली बात आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म पे बात करनी है, एंड देन हमें अप्रोच क्या लेना है टू सी दैट इज गवर्नमेंट लिमिटेड, उसका रिस्ट्रिक्टिव रोल है कि नहीं, क्या गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई
प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या लीगल प्रोविजंस हैं कि नहीं, ठीक है। एंड देन विल टॉक अबाउट कि ये इंडिया में फंक्शनल रियलिटी है कि नहीं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे आए तो आपको एग्जांपल्स के साथ इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, और दोनों ही साइड्स इसमें आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी। सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट कीवर्ड हियर, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग करना है। नाउ अब अदरवाइज एग्जाम का जो लेवल है, बिकॉज वो एग्जामिन करने के लिए कह रहा है, तो ऑफ कोर्स वी नॉट नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हियर, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू सी लिटिल, वी नीड टू गो इनटू लिटिल डिटेल हियर। तो अगर इसको थोड़ा कंपैरेटिवली समझे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक आइडिया है, एक फिलॉसफी है। इट इज नॉट अबाउट अ रिटन बुक, कोई एक बुक नहीं है रूल बुक कि आपको फॉलो करने, बट इट इज अ मोर ऑफ अ आइडिया और अ फिलॉसफी। जैसे सेकुलरिज्म इज अ आइडिया, लिबर्टी इज अ आइडिया, एंड ब्रदरहुड इज अ आइडिया, एंड इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज अ आइडिया। So our constitution promotes it, बट आइडिया केम फर्स्ट एंड द प्रोसेस केम लेटर, ठीक है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में सारे आइडियाज थे, दैट इज द वे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्क, एंड इवेंचुअली उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो इट हैज अ फिलॉसफी और द प्रिंसिपल, एंड Constitution is a written document. Then here it restricts the functioning of the government. For example, अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में secularism is a very important principle of the constitutionalism, तो constitutionalism में गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन को सपोर्ट करता है या उसके तरफ बाइज गवर्नमेंट दिखे, ठीक है। that will not be proper. So that means government has a restrictive role here, that government has been restricted to a defined idea of secularism कि उसके बाहर वो नहीं जा सकते, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू मेक रूल्स रेगुलेशंस तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन, एंड हियर फर्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसके आइडियल्स को हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एड्रेस करना पड़ेगा। नाउ टू रिमाइंड यू अबाउट द थिंग्स, फर्स्ट हम कीवर्ड्स देखते हैं। तो हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गवर्नमेंट बाय लिमिटेड पावर एंड फंक्शनल रियलिटी, ये हमारे कीवर्ड है। अप्रोच क्या है, ये बताना कि आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन रियलिटी है कि नहीं, और डायरेक्टिव क्या है, दैट इज एग्जामिन, ठीक है, कि है तो किस लिमिट तक है, नहीं है तो व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है। सो विल बी हाईलाइटिंग ऑल दोज एस्पेक्ट। नाउ फर्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को सस्टेन करने के लिए सबसे पहले सुप्रीमेसी चाहिए ऑफ द रूल या रूल ऑफ लॉ चाहिए, एंड देन वी नीड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोगों द्वारा चिन्हित या चुनी गई सरकार ही जो सारे गवर्नमेंट के काम या फंक्शंस या अथॉरिटी अपने पास रखेगी और उसको यूज करके वो आगे फंक्शन करेगी, ठीक है। देन वी हैव द सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज आपके पास अलग अलग बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। तो तीनों के वर्क में देयर इज अ बाइफर्केशन और सेपरेशन। नाउ ये सेपरेशन बहुत जरूरी है ताकि चेक्स एंड बैलेंस बन रहे। जैसे अंबेडकर जी कहते हैं कि चेक्स एंड बैलेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। देन वी need a independent judiciary also, so that these all constitutional provision can be safeguarded. अगर कोई violation हो रहा है by the government, we'll talk about the examples also, तो ये काम होगा जुडिशरी का। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो इसे इंश्योर कर पाएगी। सो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि लिमिटेड पावर्स हो गवर्नमेंट के पास और विद इन द रूल बुक वो काम करे, ठीक है। चलो दिस इज द आइडिया। सो इंट्रोडक्शन में इसको थोड़ा बता के फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब जो सेशन को जिनको अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है वो उन कलर कोड पे थोड़ा ध्यान देना। देखो अब क्या है, हेयर वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 3 लेयर्स, ठीक है। 3 लेयर्स में काम करेंगे। पहली लेयर है जो हम सब करते हैं, दैट इज टू गिव द सब्सटेंस। हम सब्सटेंस हमेशा लिखते हैं, ठीक है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, सो आपका सब्सटेंस आप क्या होता है, मतलब मटीरियल होता है लिखने के लिए। लेकिन गलती क्या होती है, दैट इज टू अप्रोच। क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो टारगेट किया कि नहीं किया। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे अप्रोच दिया कि क्या इंडिया में ये फंक्शनल रियलिटी है या नहीं, तो फिर आपको अप्रोच ऐसे लेना है, दैट इज टू आंसर दिस थिंग कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर इन इंडिया और गवर्नमेंट इज बीन लिमिटेड बाय इट एंड और अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लेंगे। एंड देन द डायरेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका पास जो डायरेक्टिव है वो आप आंसर करें, बिकॉज विदाउट दिस यू विल नेवर बी एबल टू क्रॉस 30% मार्क्स। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही आएंगे। जब तक आप
डायरेक्टिव को फॉलो नहीं करते, ठीक है, दैट इज द पॉइंट हियर। नाउ चलो आगे अब इसके आंसर पे आते हैं। सो कलर कोड समझ लिए, सब्सटेंस के लिए हम ये कलर यूज कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ देम। एंड अब इसमें देखो कि जब आंसर लिखोगे तो फिर कैसे उसको प्रॉपर सभी बातों को कहना भी है, वर्ड लिमिट भी में भी रहना है, और हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। सो हेयर फर्स्ट विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमको चाहिए। हमारी जनरल स्टडीज की अंडरस्टैंडिंग से हमें आर्टिकल भी पता जाएगा, आर्टिकल 50 यू विल इलैबोरेट दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता क्या है। बट then because it's a optional question, then you need to quote the various case studies and you need to use the terminologies। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। we will explain कि भाई it is the basic structure of the constitution, means that independent judiciary को भी आप, या जुडिशरी की जो इंटरप्रिटेशन या जुडिशरी के जो वेरियस जजमेंट्स है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना दिया जिसको वायलेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। दो गवर्नमेंट कैन अमेंड द लॉज, अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको वो बिल्कुल सेक्रेट मानेगी और उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, ठीक है। तो उनको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहां पे हेल्ड हुआ था? केशवनंदा भारती केस इन 1973। तो दिस इज हाउ वी गॉट अ अप्रोच ऑल्सो कि गवर्नमेंट लिमिटेड है, फंक्शनल रियलिटी है इंडिया में, क्योंकि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं एंड उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। नाउ अब आते हैं ऑन द डायरेक्टिव पार्ट। तो डायरेक्टिव में हम लिखेंगे कि भाई देखो, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एस्टैब्लिश है, इस करके गवर्नमेंट लिमिट हो जाती है, पार्लियामेंट की फंक्शंस लिमिटेड है, एंड इससे गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ओवर रीच इट्स पावर, अपनी दायरे से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। एंड क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे कोट करना है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर को भी हम यहाँ पे कोट करेंगे एंड विल राइट Grenville Austin, who is a big name with respect to public administration and political science also, because he has contributed a lot with respect to the constitutionalism in India, and he has various theories and various ideas, ठीक है। So we'll quote him also. So he says कि इंडिया में framework of government है, this constitutionalism associate with that, कि इंडिया में एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है अंडर आर्टिकल 13 टू द गवर्नमेंट ऑफ टू द इंडियन जुडिशरी, दैट दे कैन रिव्यू एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और एनी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये हम इलैबोरेट करेंगे, तो अप्रोच को आंसर करेंगे। अप्रोच में हम लाइन ऐड कर देंगे कि जुडिशरी कैन स्ट्रक डाउन एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और रिमाइंड यू कि एक और कीवर्ड है फंक्शनल रियलिटी। तो वी विल ऐड अ थिंग हियर, दैट इज कि इलेक्टोरल बॉन्ड को आप देख लो, वो इलेक्ट्रो बॉन्ड स्कीम को, कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब उसने ये स्कीम बनाया, एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब ये स्कीम सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक डाउन कर देता है, बिकॉज इट वायलेट द आर्टिकल 19 प्रोविजंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन अ एग्जांपल आल्सो। तो हमारी तीनों एस्पेक्ट कवर अप हो गए एग्जांपल के साथ। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव अ थर्ड पॉइंट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हम सिंपल बात बोलेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। सो गवर्नमेंट के लिए एक लिमिटेशन हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट टेक आर्बिट्रेरी एक्शन, बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑन दिस राइट, एज वी कैन गिव द एग्जाम्पल, दैट इज पुट्टू स्वामी केस जो है, दैट इज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017, upheld that the right to privacy is very very important right, and it cannot be sacrificed only for implementation one scheme, that is Aadhaar usage. And this is how we have added all the three layers in the question. And then इसके बाद fourth point पे चलेंगे and we'll say कि जो fundamental rights हैं, जो Constitution of India है, it also ensures federalism in the country, and we'll also mention our articles for that respectively. And then we'll simply add one specific point here, that is कि अब जो फंडामेंटल राइट है वो ये भी इंश्योर कर देता है अलॉन्ग विद द फेडरलिज्म कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सिंगल एंटाइटी ना बन जाए। जैसे कि फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कि यू हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, with among the state, center and the concurrent list, and that ensures that the central government or any government for that matter do not become super powerful or kind of a superman कि सब कुछ वही खुद ही कर रहा है, ठीक है। And then we will add one more observation by the B.R. Ambedkar, and will say कि he envisages the Constitution of India and the federalism as a
cooperative federalism where the center and the state cooperate with each other for the economic prosperity of the country. ठीक है, अब in between हम एक लाइन ऐड करेंगे अम्बेडकर जी का, और उसमें हम बोलेंगे चेक्स एंड बैलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, and if we have that kind of a checks and balances, then we will be able to see that the constitutionalism has been followed in a spirit. Now अब accordingly we will move to the other aspect because हमसे एग्जामिन करने के लिए बोला था ना. इफ यू रिमेंबर वी आर बीन आस्क्ड टू एग्जामिन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे इंश्योर कर रहा है दैट इज अ गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक है, तो अब उसके ऑपोजिट पॉइंट्स भी हमको देने हैं एंड विल से कि भाई कई बार होता क्या है कि एग्जेक्टिव डोमिनेंस आ जाती है बिकॉज सम ऑफ द गवर्नमेंट गेट द ब्रूटल मेजॉरिटी, मतलब इतना नंबर ऑफ सीट्स उनको दे आर एबल टू गेन दैट दे कैन सरपास द checks and balance in the parliamentary system and they become a majoritarian government. और जब ऐसा होता है तो फिर we see the deliberations taking the hit कि laws के regarding parliament में discussion ही नहीं हो रहा है. And we'll also quote an example. We'll say that the 3 criminal laws which has been passed by the government of India last year, they were not been deliberated in the parliament में बहुत detailed discussion नहीं हुआ because large number of MPs were being suspended from the proceeding of the parliament. Now next इसके बाद 5th point पे आते हैं. then we'll say कि भाई ये इसलिए भी नहीं हो सकता constitutionalism या restrictive government और गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट हम इसलिए भी नहीं कर पाते बिकॉज जुडिशरी इसका रोल है टू लिमिट द ओवर रीच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम दैट इज बैकलॉग. उनका बहुत सारा बैकलॉग है विद रिस्पेक्ट टू केसेस एंड दे आर दिस चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म इज नॉट एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. सो दिस इज हाउ वी विल हाईलाइट एंड विल आल्सो गिव अ एग्जांपल ऑफ द आरटीआई एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज वो आज तक नहीं स्टैब्लिश हो पाया बिकॉज अभी तक जुडिशरी ने जजमेंट ही नहीं दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो आरटीआई के दायरे में या प्रीव्यू में आती हैं. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी. विल से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेरियस प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड ऑल, बट जहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे स्टेट की सारी पावर भी सेंटर पे चली जाती है. देन यू हैव अ सिंगल अथॉरिटी, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सो दिस इज हाउ वी विल हाईलाइट द kind of examples which ensures restricted government and will also highlight the opposite of it कि where the government becomes super power or superman in that particular sense. ठीक है, अब next question पे आएंगे and नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है वो बड़ा डिफरेंट है. इट सेज कि डू यू एग्री, किससे एग्री करने के लिए पूछ रहा है. दैट इज कोड ऑफ एथिक्स एक चीज है एंड कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज है विच इज एप्लीकेबल ऑन द मिनिस्टर्स. And do these two mechanism, code of ethics and code of conduct, are that useful to maintain the standards or high standards with respect to constitutional and ethical conduct of whom? Of the minister. So ये हमसे पूछा कि ये क्या ये दोनों कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स ये हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल कंडक्ट के, या नहीं कर पाते हैं. ठीक है, डू यू एग्री और नॉट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच क्वेश्चन यू विल नॉट टेक अ साइड. कोई साइड नहीं लेनी है पहले. यू विल फर्स्ट कंtemplate बोथ द एस्पेक्ट कि भाई हाँ टू दिस एक्सटेंट it ensures to this extent it is not that effective. so इसको elaborate करते हुए फिर आप आगे चलेंगे एंड इसको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में. ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी करना है कि अपने स्टैंड को क्लियर भी करना है. नाउ अब दो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, बट इट विल ऑलवेज बी एडवाइसेबल कि आप इंट्रोडक्शन में जो भी कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है. कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक मॉरल वैल्यू या मॉरल कंडक्ट से निकल के आता है. वो वहाँ कोई रिटन लॉज नहीं होते. लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वी हैव अ डिटेल्ड लॉज फॉर इट. फॉर एग्जांपल योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स दैट इंश्योर्स दैट हाउ member of parliament will function or what will be their limitations and all. So accordingly we will talk about that and बाकी पॉइंट्स को भी अभी हम नीचे हाईलाइट करेंगे. सो हेयर वी हैव द रिक्वायरमेंट इन द वेरी स्टार्टिंग विल से कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स दोनों को साथ चलना पड़ता है, तभी हम इंश्योर कर पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल कंडक्ट जो है वो उनके हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहे इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस कलर कोडिंग. अब इनको लेयर बाय लेयर करेंगे. तो फर्स्ट वी सी द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट में हम एग्जांपल लेंगे ऑफ
of the Representation of People's Act 1951 and will say कि this act ensures कि there is no conflict of interest with respect to functioning of these ministers because they are required to disclose their personal wealth. और इससे हमको ये पता लग जाता है that is whether they are having good conduct or not, or that is how we are able to maintain a standard because we will see कि are they involved in some kind of a corrupt practice or not. ठीक है, इस तरह से हम इसमें elaborate कर देंगे and then we will talk about the second point, that is it promote the transparency and accountability and for the purpose of example we'll say कि RTI एक code of conduct दे देता है आपको because एक rule है कि आपको within 30 days आपको information देना है. तो ये भी एक limitation हो गई on the ministry that they cannot violate such a provision of the law. So ये code of conduct का example हो गया and then we'll say that it ensures कि arbitrary action ना लिए जाएं by the government and there is no biasness because that will be revealed under the transparency and accountability law, that is RTI. Now next, code of ethics. Code of ethics में will say कि it is kind of a provision, it is not legally enforceable but because it ensures various things like collective responsibility. Like we will give the recent example that new government has taken oath and ministers has taken oath of secrecy कि उन्होंने oath of secrecy लिया है and it also ensure that they will swim together and they will sink together कि united front रहेगा. जैसे अभी you have a present controversy regarding the functioning of the railway ministry and the ministry of education. ये एक तरफ नीट का पेपर controversial हो गया और दूसरी तरफ you have a accident in the West Bengal of the railways. ठीक है, so that is कि अब ऐसा ना हो कि the prime minister is not having the faith or the confidence in these ministers. then होगा क्या, इससे एक तो public disagreement आपका दिख जाएगा between the ministers and then also people trust on the government will fall and that is not good for the effective government or the governance. So this is how we will add all the three layers and then we'll say कि this is very very important कि code of ethics में कहीं पे written laws नहीं होते but you maintain a common front that you take a collective responsibility of whatever is happening in the government. ठीक है, and then we have the next point, that is administrative ethics. Administrative ethics में will simply say कि Dwight Waldo and Frederick ये हमेशा बोलते हैं कि the ethical conduct are very very important because it will ensure कि कोई minister किसी एक से biasness ना हो जाए या किसी एक he will not become he do not become biased towards some specific individual or a group and do not treat them as a client or clientage and do not become a patronage to them. ठीक है, कि एक business group को benefit देने के लिए they are manipulating with the policy. So that is ensured by the administrative ethics. ठीक है, as highlighted by the Dwight Waldo and Frederick. ठीक है, always remember to give the models and the names of these authors or thinkers or the models so that you get a maximum marks. ठीक है, otherwise ये GS का आंसर रह जाएगा अगर आप इस तरह से राइटर्स को या थिंकर्स को कोट नहीं करते हो फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, देन वी हैव द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक सर्विस का आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं पे रिटन लॉज में नहीं होता कि आपको लोगों की सेवा करनी है. ये एथिकल कंडक्ट है, एक मॉरल कंडक्ट है. सो इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. बट मैकग्रिगोर अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर, ही सेज कि ऑफ कोर्स और maybe it cannot be legally enforced, but if you have that kind of a leader, अगर आपके पास एक एथिकल लीडरशिप हो, इट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप, जहां वो कहते हैं कि लीडर अगर एथिकल होगा तो ही विल इंश्योर कि जो पूरा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से फंक्शन करे. ठीक है, तो चाहे आपके रिटर्न लॉज नहीं है लेकिन फंक्शनिंग फिर भी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, दिस इज हाउ he highlights. And in the last we'll simply talk about the administrative discretion, that administrative discretion is a problem with respect to ethical conduct and constitutional conduct by the minister, because जब discretion आती है तो biasness आने के chances बढ़ जाते हैं and there is a inconsistency in the policy implementation also. ठीक है, तो that is it should be minimized and this is how we will cover all the aspect of our question. ठीक है, I hope you are able to understand कि कैसे layers add करनी है हर एक क्वेश्चन में. हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे हर एक टॉपिक में एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग, बट हमारा जो मेन आइडिया है दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना आपके लिए एक ईजी
और एक ऐसा व्हीकल हो सकता है टू अल्टीमेटली अचीव योर और टू रीच योर डेस्टिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी हेसल। ठीक है, कि आप वही सारे टॉपिक करो जो जीएस में भी करते हो और यही हम ऑप्शंस में भी कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू द गिवन नंबर्स and otherwise you can give your feedback in the chat box also. The document will be shared in the Telegram group today itself, so go through. 2 questions I have covered, we have practiced them. Now 3 questions are there, content I have provided, you just need to frame the answers according to this these structures. If you need any feedback on that, you can write us to on the given numbers. Okay, you can contact me directly. I am Deepak Thakur and for this is all for this session. See you in the next session. Thank you so much.